पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं ना, फर्स्ट चीज़ हाँ सब कुछ ठीक है, व्हेन यू गो डीपर इनटू द हिस्ट्री तो पता चलता है कि उनकी बिल्कुल कोई सेक्सुअल इंक्लिनेशन नहीं है दोनों में, और दे हैव बीन लिविंग टुगेदर और सोचते हैं हाथ पकड़ने से बच्चा हो जाए। इनफर्टिलिटी के इंसिडेंस अभी भी करीब 10 से 12% है, मतलब हर 6 कपल्स में एक जना इनफर्टाइल हो सकता है। What exactly is IVF? लड़की चाहिए करके हार्डली कोई आता है, लड़के के लिए ही सब आते हैं। IVF का क्या कॉस्ट आता है? मिडिल क्लास लोग IVF अफोर्ड कर सकते हैं? अब सोशल फ्रीजिंग का ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि एक महीने में अगर मैं 100 IVF करती हूँ तो उसमें से 10 एग फ्रीजिंग के लिए आती हैं लड़कियाँ। ऐसे नहीं होता है कि वो ब्लू आईज और कर्ली हेयर वाले बच्चे हो जाएं। बॉलीवुड हैज़ बिकम the biggest curse for women who needed true surrogacy. Everybody has a goal कि after this I will get married. What is the right age? वो 30% या 40% ऊपर वाले ने अपने हाथ में रख लिया। तुम एम्ब्रियो डालो, हम बताएंगे कि इम्प्लांट होगा कि नहीं, हम डिसाइड करेंगे। You cannot be the creator of life. Hello and welcome to TDM Manthan. I'm Vatsala and we're back with another very informative episode. So this episode is for people not just seeking IVF but who have so many questions, about what is IVF exactly, and can we even have healthy babies through IVF, and all these misconceptions about that you can have the kind of baby with a green eyes, curly hair, or a firang baby, all those things. You will find answers to all these questions and much more in this episode because we have an expert with us. She's Dr. Abha Majumdar. She's the director and head of the IVF department at Sir Gangaram Hospital, New Delhi. And she's one of the first doctors in North India to have done an IVF delivery. So here we welcome Dr. Abha Majumdar on our show. Welcome, ma'am. We're so glad to have you. And you've been such a busy person with, you found time for us. So I'm so glad, and people will get so many clarifications today. I'm glad to do that. This subject needs a lot of clarifications. Yes. There is, the internet is full of all those kind of trends and questions and a lot of other advices which are I think very unwarranted. Yeah. So do we go directly into it? What exactly is IVF? IVF, as the word goes, is I in vitro fertilization. In vitro fertilization makes a short form of IVF, and in common language once upon a time people used to call it test tube baby also. Test tube baby. Yeah, right. Because here the gametes from the man and the woman are put together in a laboratory, fertilized, grown into a early baby which is called an embryo, and then put back into the woman's uterus to implant and grow for the next 9 months as a normal baby. Okay. So, since you were one of the first doctors to deliver an IVF baby in North India, when did the first IVF happen ever, across the globe? Oh, across the globe, the first scientifically recorded baby is baby Louis Brown, who was born in England in 1978. Now, there is a very interesting story with that this was the first IVF baby in the West. Louis Brown, right? Born in July. Now, very soon after that, there was an Indian doctor, Dr. Subhash Mukhopadhyay, in Calcutta, who had handwritten notes, no journals, no publication, but he created the first IVF baby just about less than 2 months after that. Okay. I think this baby was in October. And this was a more advanced technology which he used, but he was ridiculed, he was embarrassed, he was, sort of insulted by the bureaucrats and by his own colleague, by the doctors also, and said, this is all rubbish, you're talking something which is not right. And it was so bad
that he committed suicide after 2 years. Who comes to the rescue? It is Bollywood. So a movie was made, Ek Doctor Ki Maut, which starred Shabana Azmi and Pankaj Kapoor, and they made the whole thing so beautifully that, like, you know, the Talwars, there was a movie made on that. Then Jessica Yes. ke upar, who killed Jessica. No one killed Jessica. So right. when they don't get justice, then Bollywood comes to their rescue, in our country at least. And this baby and this scientist was acknowledged by whom? The officially documented IVF baby of India was born in 1986 by the efforts of Dr. Anant Kumar and Dr. Indira Hinduja in Mumbai. And he looked into the handwritten notes of Dr. Subhash Mukhopadhyay, and he looked at the relevance, the scientific correctness. The only thing that he never published it. You know, publication was at a very back, had taken a very big backseat in our country. So they were all handwritten notes, and he then gave the credit away to him. And then ICMR, after the death of Subhash Mukhopadhyay, I think after 11 years or maybe a lot of, in 2001 probably, gave him the credit of the first IVF baby of India. This is This was quite just a story. 58 days after the birth of Louis Brown in the Western world. This is baby Durga. Her name is Kanu Priya Agarwal, who was born in Calcutta. Okay. And she's grown up now. She's grown up. There are a lot of interviews. If you go onto the YouTube, you will find a lot of YouTube. You put Subhash Mukhopadhyay's name, it'll pop up. His gynecologist was Mrs. S. Bhattacharya, and even his cryobiologist is still alive. Okay, that's great to know. Yeah. This is quite a story. So, as you said, you know, this was just 2 months after that. Less than 2 months after So, that. this is the pre-internet era, and that means he did not even know that by that time that something like that is happening in... Possibly. He was educated in England. He was in possibly the same university where Dr. Steptoe and Patrick Steptoe and Edward worked. So he did have an idea, and he was a triple MSc and PhD and very educated man. So, he had that idea like right when they were Possibly, already, and he was working on it in India, but he didn't have a big lab. He was working in his house, a sort of makeshift arrangement for a laboratory, and he wasn't recognized. He was ridiculed. That's quite something, because उस समय में किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि you can have babies outside the human body, like this man right. claims. And by that time, I don't even know whether everyone had the news of baby Louis Brown being born, because that was just 1.5 months ago. There was no internet in the 70s. That's what I was wondering. Yeah, so news came slower. So that's the story behind this. Yeah. So, ma'am, how did you get into IVF? क्योंकि उस समय में भी तो बहुत ही कम था. हाँ, but still India में शुरू हो गया था. And I joined Gangaram Hospital in 1987, February. And Dr. Bhandari, who was the head then, was very interested in developing this department of obs and gynae. So she was the whole force behind it. She said, somebody has to become an oncologist. We should have a very specialized oncology or cancer department. We should have an infertility and IVF department, because these are the advances which are happening in the world. And she asked, we were then 3 junior consultants then, and she asked all of us that who would want to go into infertility. I had already started infertility clinics, the free OPDs of Thursday then. So I said, I'm interested. She said, but you'll have to leave gynae and obs. I want whole soul concentration into it so that it can be developed. I said, okay, I won't take the hospital's gynae and obs, but if anything comes to my private OPD, I took that only. And Dr. Kochar was my senior, who had come from Kasturba Hospital. Kasturba Gandhi, right. Yeah, and she was a retired person from there. So she came in and joined my same unit in which I was. She was the senior person, I was the junior person. And we got hold of an embryologist who had done no embryology. But she was working in AIIMS under Dr. Talwar, and she had seen animal gametes.
eggs and sperms. She had worked on mouse eggs and sperms. So we got a reference that she's a very hard-working lady. She was also retired. Got hold of her. It was a team of 3 persons: Dr. Kocher and me on the clinical side, and Dr. Raj Gaur on the embryology side. And we started. It was so difficult. She had never seen a human egg. So I remember our OT was upstairs, and Dr. Kocher used to take out fluid from the ovary laparoscopically. We used to push it into a tube, and I used to run downstairs where she had a small, maybe a 5x5 cabin with a microscope. See if you can see an egg in it. And slowly she started recognizing an egg. All this humbug must have started hardly in 1990. And by the end of 1990, we got a pregnancy. And the baby was delivered on the 21st of September. We called him Garv. And it was so nice that that lady volunteered for IVF. And the day her pregnancy test came positive, she said, I'm running. She had her embryo transferred, and she ran to the neonatal nursery because she had just adopted a baby girl then. Oh, You know, and she those had kind days- of lost hope. Yeah, then. yeah. So she had adopted. She said, this may work, may not work, but let me go and look at the baby, because I think that baby was preterm, and whoever had given her that baby for adoption, she was like so attached. So she did not rest or do anything. She ran, and then after 2 weeks we found she was pregnant, and this pregnancy continued. This was our first success story. मैम, तो उस समय में आपने जब बोला ना फर्टिलिटी क्लिनिक स्टार्ट हुआ था, तो क्या बहुत जैसे अभी तो इनफर्टिलिटी इज लाइक द नॉर्म, तब ऐसा नहीं था? नहीं, तब ऐसा नहीं था. बहुत टैबू था इनफर्टिलिटी के नाम पे. औरत बांझ है, ये बहुत बड़ी एक वो थी. सो लोग बाहर ही नहीं आते थे. यही बोलते थे ट्राई नहीं किया. अभी हम सोच रहे हैं. इनफर्टिलिटी के नाम पे IVF टैबू था, ट्रीटमेंट टैबू था. उनको लगता था पता नहीं किसका स्पर्म वर्म डाल देंगे, कुछ कर देंगे. लोग साधुओं के पास जाते थे, फल खा के प्रेग्नेंट होते थे. और हमारी माइथोलॉजी में तो सूरज देवता, पवन देवता सब ने प्रेग्नेंट किया हुआ है. अब सब देवता कैसे थे भगवान जाने, खीर खिलाकर जो है ना. सो अगर देखा जाए तो जब हमने IVF करना शुरू कर दिया, और पहला IVF फंक्शन 10 साल पे किया, दैट इज़ इन 91 में हुआ, तो 101 में 2001 में किया. पेरेंट्स हमारे आने को नहीं तैयार थे फंक्शन में. दे सेड अगर हम आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये बच्चा IVF से हुआ है. सब हम लोगों से बोलते थे प्लीज़ हम डिलीवरी हो रही है. कुछ लोगों ने डिलीवरी हमारे पास इसलिए नहीं कराई कि आपके पास कराएंगे तो लोगों को लगेगा IVF से बच्चा हुआ है. इतना ज़्यादा टैबू था. अब बिल्कुल नहीं है वो टैबू, बिल्कुल चला गया है. अब तो इट्स अ ट्रेंड. अब तो 3 महीने ट्राई किया, नहीं हुआ मैडम मेरा IVF कर दो. अरे भाई थोड़ा और ट्राई कर लो. नहीं वी डोंट हैव द टाइम. अब तो IVF ही कर दो हमारा. इतना ईजी हो गया है. ना टैबू है, ना सोचते हैं. वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज ओह वाओ IVF से बच्चा हुआ है. अब है हाँ IVF से हुआ है. आपको लगता है कि ये जो IVF का एक तो इनफर्टिलिटी के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया है? ऐसा ज़्यादा नहीं है, लोग बाहर आने लगे हैं. लोग बाहर नहीं आते थे. इनफर्टिलिटी के इंसिडेंट्स अभी भी करीब 10 से 12% है. मतलब हर 6 कपल्स में एक जना इनफर्टाइल हो सकता है. एंड दिस इज द सेम जो पहले था 1990s जो पहले था, लेकिन लोग बाहर ही नहीं निकल के आते थे. अब तो चाहे इनफर्टिलिटी ना भी हो, वो इनफर्टिलिटी के नाम पे बाहर आ जाते हैं कि भैया हमने 3 महीने 6 महीने. इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि 1 साल अनप्रोटेक्टेड अगर इंटरकोर्स हो और कपल ट्राई करे और प्रेग्नेंट ना हो पाए, तब उसको हम इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में रखने की कोशिश कर सकते हैं. अगर सब फैक्टर्स, तब हम जांच करेंगे और देखेंगे कहाँ क्या कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है. Could you get it? तो 12% 100 में से, तो इट इज़ लाइक दैट ओनली. इट्स नॉट दैट हाई. आई मीन इट्स नॉर्मल है, लेकिन अभी तो 12% नहीं, हम बोलेंगे 24% हो गई है, क्योंकि वो डेफिनेशन तो कोई फॉलो ही नहीं करता है. 3 महीने बाद ही अगर तुम बोलो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो फिर तो वो 20-25% हो गई. राइट. क्यों? तो सेक्सलेस मैरिजेस सुना है आपने?
आजकल सबसे It's a buzzword ज़्यादा on इंटरनेट में भरा हुआ है और ये सच्चाई है. पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं ना, फर्स्ट चीज़, हाँ सब कुछ ठीक है. व्हेन यू गो डीपर इनटू द हिस्ट्री तो पता चलता है कि उनकी बिल्कुल कोई सेक्सुअल इंक्लिनेशन नहीं है दोनों में, और दे बीन लिविंग टुगेदर और सोचते हैं हाथ पकड़ने से बच्चा हो जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर IVF के लिए चले ऐसा जाएं. क्यों है? दिस इज अ लाइफस्टाइल थिंग. This is the fast moving internet samana which has changed everything. So can they find sexual intimacy on the internet? No. Not in the internet. They say that just holding hands, hugging each other, lying close to each other Okay. gives them enough satisfaction that they don't need to go through. They don't need it. They have low libido. They have either low libido or they are scared. Girls are so scared of even having one sexual contact. They feel, I'll have pain, I have problems. Vaginismus is so widespread in patients or couples who come to us for infertility treatment. Okay, this is something new because मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि but now the question is I have to reframe it that हमसे जो पहले generation थी, previous generation, like our parents, Like us. Yeah, I mean, yes. So they used to have more fulfilling kind of sexual life. Very much. Yeah, a relationship and more frequency देखो of ऐसा having है, a, what is under the carpet we don't know. On the outside we all used to feel that everyone has 4, 5, 6 children and they must be having a good sexual life. Homosexuals तब भी होते थे, lesbians तब भी होते थे, लेकिन अपने आप को curb कर लेते थे. Societal pressure पे everything used to on the outside look normal. उस ज़माने में या हमारे ज़माने में we had 2, 3 children very easily. But the newer generation is now the Y and the Z and the alphas which are coming up, True. So मैं ये जानना चाह रही थी कि now अभी people not having those kind of intimate relations, like they're not having an intercourse. They are working late. All the girls are working also. हमारे ज़माने में तो I was one of those girls who started working after my studies. Medicine में चली गई, काम करने लगी. I had children also. I have 3 children. We used to do very nice work-life balance. आजकल तो सारा question work-life balance का है. मतलब if you want to reach to some heights, you have to work with your heart and soul. And if you want a close family, then you have to give your heart and soul to your family. इन दोनों को पूरा करने में काफ़ी मल्टीटास्किंग स्किल्स के साथ साथ बहुत डेडिकेशन चाहिए. यू हैव टू गिव योर सेल्फ अवे टू द फैमिली, टू योर हस्बैंड, टू योर वर्क. यू कैन नॉट कट कॉर्नर्स एनीवेयर, अदरवाइज दैट पहलू विल सफ़र. आपके नज़र में अभी क्या डिफरेंस है? अभी क्यों नहीं कर पा रहे हैं लोग? इवन दो व्हेन नाउ अभी तो हस्बैंड्स ऐसा बोलते हैं ना, दे आर मोर सपोर्टिव, वर्क लोड शेयर करने लेकिन में उतना नहीं है, बट स्टिल बहुत सपोर्टिव हैं हस्बैंड्स. अगर हम नई जनरेशन को देखते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विलेजेस एंड अदर प्लेसेस, नई जनरेशन, अर्बन पॉपुलेशन, दोनों काम कर रहे हैं. और शायद ये सब बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो इनके माँ बाप ने इतना अपने ऊपर काम और स्ट्रेस लिया कि इन लोगों ने बहुत कम सीखा और बहुत कम एडजस्ट करने की पावर आई. उसकी वजह से अब क्या हुआ है कि घर आते हैं दोनों थके हुए शाम को, तो नोबडी वुड ऑप्ट टू कुक. बाहर से खाना आ जाएगा, खा लेंगे या बाहर ही खा लेंगे. देखो बाहर रेस्टोरेंट्स भरे हुए होते हैं, है ना, ऑलमोस्ट. हाँ. सो कोई ऐसी जगह नहीं है खाने की जो खाली हो. तो वही हो गया है कि आए थक के हम ज़्यादातर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल कांटेक्ट. मैम टाइम ही नहीं मिलता है हमें, हम आते हैं, मैं थकी हुई होती हूँ या वो थके हुए होते हैं. वी जस्ट स्लीप एंड वी गेट अप maybe once or twice a month or maybe even less than that. And the moment you put them on the couch to examine, then you know that they've never had any sexual contact because she doesn't allow a examination also. ऐसा भी होता है. ऐसा ही होता है. You must come to the clinic and see that how many girls come in this shape. मतलब I would say at least 25% ऐसे लोग आते हैं और बाकी genuine infertility लेके आते हैं, जिनका हम लोग IVF सजेस्ट करते हैं. बट ये पॉपुलेशन काफ़ी है.
आपके हिसाब से व्हाट इज द क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए टू हैव अ सेक्सुअल नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, एक नॉर्मल लिबिडो होगा तो आप खाना रोज खाते हो, यू माइट हैव अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मे बी 10-15 times a month. 10-15 times, so that's kind of normal. That's normal. 10 times also is normal. I mean, for busy people, it may not be very easy, but if the sexual desire is there, they would have a contact, however busy they may be. So desire भी नहीं है, ऐसा भी है मतलब? हाँ, libido ही नहीं है, desire ही नहीं है, थकान जो है it overtakes everything else. Your office tension overtakes everything else, whether it is a man or the woman. तो ये दोनों के लिए इट्स काइंड ऑफ न्यू एज प्रॉब्लम है ये, बिल्कुल। हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ना, तो इंटरनेट की स्पीड के साथ ये साइड इफ़ेक्ट आ गया है। और आप अगर खोलेंगे इंटरनेट, आप इसके ऊपर बहुत पढ़ेंगी। ऐसे मैम, जो जेन्युइन फर्टिलिटी केसेस आपने बोला, जी। तो उसमें अर्बन एरिया में कितना है और जो स्मॉल टाउन्स या रूरल एरियाज में से कितना है? सब जगह देखो, इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस WHO ने जो निकाला है वो यही बोला है कि अबाउट 12%, 10 में से एक इनफर्टाइल होगा और मे बी 8 में से एक इनफर्टाइल होगा। इनफर्टिलिटी के जो रीजंस हैं, उसमें जो जेन्युइन रीजंस हैं, उसमें मैन कुड बी रिस्पॉन्सिबल, वुमेन कुड बी रिस्पॉन्सिबल। लगभग 40% मैन तो 50-60% वुमेन, दोनों इक्वली हो गए अब आजकल। सो मैन में मेनली इट इज़ ईदर सीमेन डेफिशिएंसीज, उसके काउंट में, उसकी मोटिलिटी में, उसके स्ट्रक्चर में, या परफॉर्मेंस डिफ़िकल्टीज़ हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, क्वाइटस नहीं हो पाता उनका ठीक ठाक। उधर फीमेल की साइड में सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्यूबल फैक्टर, जहाँ ट्यूब्स अफेक्टेड हो जाती हैं, किसी वजह से बंद हो जाए। और इसमें एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम्स, जो पेल्विस में डिजीज़ेस होती हैं, वो भी ट्यूब्स को इन्वॉल्व कर लेती हैं, भले ही बंद ना करें, उनको डिफंक्ट कर देती हैं। तो ये तो हो गया सारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो ट्यूब्स की हुई। दूसरी होती है ओव्यूलेशन डिफेक्ट्स, कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके लिए IVF नहीं चाहिए। वो बिल्कुल आराम से दवाइयों से ओव्यूलेशन इंड्यूस करो। अगर दोनों की सेक्सुअलिटी अच्छी है, दे विल कंसीव नेचुरली, नॉर्मली। एंड तो ओव्यूलेशन हो गया, एक ट्यूबल हो गया। इसके अलावा आई वुड से नथिंग एल्स। बहुत कम होता है जहाँ बहुत स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो यूट्रस में, बट वो बहुत छोटा परसेंटेज होता है। बहुत बड़ा ग्रुप जो चौथा है, अपार्ट फ्रॉम मेल, ट्यूबल एंड ओव्यूलेशन, इज़ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जहाँ जब टेस्ट करो हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है। दे आर हैविंग गुड कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो, दे आर टुगेदर ऑल्सो, ओव्यूलेशन भी ठीक हो रहा है, ट्यूब्स भी बढ़िया हैं, यूट्रस भी नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही और सालों साल निकलते जा रहे हैं। ये बेचारे सबसे ज़्यादा वेट करते हैं, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, सब टेस्ट हो गए हैं, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इनके लिए भी इवेंचुअली IVF ही काम आता है, जब 3-4-5 साल हो जाते हैं। और हर तरीका ऑफ ट्राइंग नेचुरली, ट्राइंग विथ मेडिसिन्स, ट्राइंग विथ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, सारे मेथड्स जो सिंपल वाले हैं वो ट्राई हो जाएं, और नहीं प्रेग्नेंट हो पाते हैं, तब इनकी बारी IVF के लिए आती है। मैम, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम IVF IVF में दोनों गैमीट्स बाहर निकालते हैं। देखो, सीमेन बाहर निकालना तो बहुत इजी है, वो तो बाहर ही एजैकुलेट होता है बॉडी के। एग्स को निकालना बहुत मुश्किल है, और हर महीने एक एग डेवलप होता है। तो IVF में एक एग से काम नहीं चलता। हम पहले तो ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं उस महीने, और एक की जगह 10-15 एग्स बना लेते हैं, उन सबको एक बार में निकालते हैं, और फिर उससे एम्ब्रियोज या भ्रूण बनाते हैं। पर IUI में सिर्फ सीमेन लेते हैं, एग को अंदर ही ओव्यूलेट होने देते हैं, और सिर्फ स्पर्म को वॉश करके यूट्रस के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में पहुंचा देते हैं, जिससे दूरी बहुत कम रह जाए स्पर्म्स को ट्रैवल करने की, ट्यूब के एंड तक जाए, वहाँ मिस एग मिल जाए और उसको फर्टिलाइज कर दें। तो ये वाला कितना सक्सेसफुल है जो IUI कम है, बिकॉज
देखो अगर प्रॉपर इंटरकोर्स हो रहा है तो स्पर्म्स पहुंच ही रहे हैं, हम और फिर भी सिर्फ नहीं हो और रहा है। पास पहुंचा रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी सबस्ट्रेट्स कम हैं और तुम इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, एक स्पर्म के लिए ये दूरी एक सहारा डेजर्ट जैसे, एक अगर ह्यूमन सहारा डेजर्ट क्रॉस करे, पर एनर्जी बहुत होती है इन स्पर्म्स में। सो नॉर्मली ये पूरा यूट्रस क्रॉस करके ट्यूब क्रॉस कर जाते हैं। 10 सेंटीमीटर ट्यूब की लेंथ है, यूट्रस की 6 सेंटीमीटर है। इसमें हम वो 6 सेंटीमीटर क्रॉस करा देते हैं पहले ही, तो 10 सेंटीमीटर रह जाता है। तो जस्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पर्म्स एट द पॉइंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बाकी सब बॉडी को खुद करना होगा, स्पर्म को एग को पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज करना है, फिर एग जो न्यूली फर्टिलाइज्ड है वो एम्ब्रियो डिवीजन शुरू होता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32, 64, और वो ट्यूब में ट्रैवल करता रहता है। 5 दिन में वो पहुंचता है बिल्कुल यूट्रस और ट्यूब के जंक्शन पे। उतने दिन में ये पूरा डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो इनटू ब्लास्टोसिस्ट। वहाँ जब रोल डाउन करता है तो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। तो ये सारा प्रोसेस हम किसी भी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं देख सकते हैं। There's no way। हम खाली देख सकते हैं ट्यूब खुली है, स्पर्म पहुंचा दिया, ओव्यूलेशन, एग निकल गया ओवरी से, बस। इसके आगे हम कोई प्रोसेस नहीं देख सकते हैं। IUI में ऑल दिस इज़ अनसीन। तो उसकी प्रेगनेंसी रेट्स हैव ऑलवेज बीन 15-18-20% के आसपास। IVF में ये सारा प्रोसेस लैब में हो जाता है। जितने एग्स हैं उनको फर्टिलाइज़ किया, कितने फर्टिलाइज, कितने ग्रो, कितने जाके अच्छे एम्ब्रियोज बनाए। एक बार एम्ब्रियो बन गया ना, हमें सिर्फ रोल इन करना है यूट्रस के। वो हमारे IVF की दर को जो 10-12% होता था उसको अब 60-65% पे ले आया है, बिकॉज टेक्नोलॉजी आउटसाइड द यूट्रस इन द लेबॉर्ट्री हैज़ एडवांस्ड अ लॉट। बट स्टिल वो 30% या 40% ऊपर वाले ने अपने हाथ में रख लिया। तुम एम्ब्रियो डालो, हम बताएंगे कि ये इम्प्लांट होगा कि नहीं, हम डिसाइड करेंगे। यू कैन नॉट बी द क्रिएटर ऑफ लाइफ। तो ये अभी भी 100% नहीं होता है? नेवर। वो पार्ट जो हम एम्ब्रियो डाल रहे हैं उसके बाद वो इम्प्लांट होगा कि नहीं, उसका चांस हम बोलते हैं, हमारे यहाँ इम्प्लांटेशन रेट्स 50-60% है। बहुत सी लैब्स हैं जहाँ अभी भी 10% है, 20% है, कोई नहीं बताता अपना इम्प्लांटेशन रेट। बट कुछ लैब्स क्लेम करते हैं कि हमारा 70-80% है, तो इज दैट? अगर उनकी प्रेगनेंसीज प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए इन लैब्स का, और ये पता लगाना चाहिए कि वाकई कितने लोग प्रेग्नेंट होते हैं, कितने एम्ब्रियोज डाल रहे हैं। अगर जो लोग एक एम्ब्रियो डाल रहे हैं और उस पर प्रेगनेंसीज आ रही हैं, दोज लैब्स आर द बेस्ट। जो 2-2, 3-3 डाल रहे हैं और उस पर प्रेगनेंसीज आ रही हैं, दे आर सेकेंड नंबर। और जो 3-3, 4-4 डाल रहे हैं और उसमें भी बहुत लो प्रेगनेंसीज आ रही हैं, दे आर द वर्स्ट लैब्स। दिस इज हाउ पीपल कैन सिलेक्ट कौन से लैब में जाना है। अगर ये लैब बोल रहा है आप जाएं और बात करें और बोलें कि हम लोग सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही करते हैं, दैट मीन्स दे मेक वेरी गुड एम्ब्रियोज एंड दे आर कॉन्फिडेंट। कोई अपनी लैब की बदनामी नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ नेगेटिव रिजल्ट्स आए, कौन आएगा फिर, है ना। बट अगर हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि हम एक एम्ब्रियो डालेंगे एंड विल गिव यू अ 60% चांस ऑफ प्रेगनेंसी, that is what the whole world is moving. The developed countries multiple pregnancy को avoid करती हैं क्योंकि उनके complications बहुत होते हैं, मदर को भी बच्चे को भी। प्रीमेच्योरिटी बहुत होती है, नर्सरी में बहुत बहुत दिन जाते हैं जिसमें अपने प्रीमेच्योरिटी के complications हो सकते हैं। सो इवन डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये जो सक्सेस रेट है, ट्रांसफ़र यूरोप में तो मस्ट है। मोस्ट ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इट इज़ द वर्ड ऑफ लॉ। लैंड का, ये लैंड का you can't do one you more than cannot one. do 2 embryo transfers except in certain instances जो उन्होंने दिया, women above this age और USA is like India, commercialization बहुत है, तो वहाँ कभी कभी कुछ हैं जो 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर देते हैं, 3 कोई भी नहीं करता है। इंडिया में करते हैं 3-4। तो इतना यहाँ पे इज देयर अ कैप की? यस, नाउ ART लॉ जब से बना है तो दे से ओनली 2 एम्ब्रियोज कैन बी ट्रांसफर्ड। 3 का आई डोंट थिंक दे हैव रिटन एनीवेयर कि 3 डाल सकते हैं। पर फिर भी ऐसा लैब्स करते हैं 3-4 तो बहुत करती थी, मतलब मैंने तो 11 तक सुने हुए हैं एक ज़माने में, लेकिन इस ज़माने में नहीं। 3 अमूमन तौर पे लोग डालते हैं, 2 ज़्यादातर लोग डालते हैं।
और 2 में से हमेशा एक कर जाता है, मोस्ट दैट इज द इंस्टेंस। देखो यही वजह है कि लोग 2 डालते हैं। अगर तुम्हारे एक एम्ब्रियो का, अगर तुम्हारा इम्प्लांटेशन रेट 30% है, 2 डालोगे तो तुम्हें 60% चांस है कि प्रेग्नेंट हो जाएगी वो लड़की। पर फिर उसका एक बड़ा चंक होगा जो मल्टीपल प्रेगनेंसी भी कर सकता है अगर दोनों इम्प्लांट कर गए। दैट इज़ द ओनली थिंग, वी आर जस्ट ट्राइंग टू कट डाउन मल्टीपल प्रेगनेंसी रेट, जिससे कि इन बच्चों को आगे चलकर मेंटल डेफिशिएंसीज ना होएं। क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा वी सी द इंसिडेंस ऑफ ट्विन बेबीज और इवन ट्रिपलेट्स, ये वही वजह से IVF है, में। which is so you see babies which are born, you don't see the unborn wasted babies. अबॉर्शंस हो गए 3rd मंथ में, 4th मंथ में, प्री टर्म डिलीवरी हो गई, लाखों रुपए लग गए नर्सरी में, द बेबी स्टिल डजंट सर्वाइव. These are very common complications of any multiple pregnancy, whether it's born by IVF or by ovulation induction or IUI, किसी भी से हो जाए. So twin babies is not a good, I mean, ये It बहुत is healthy a नहीं है. risky thing for the babies. अगर कुछ प्रॉब्लम होती है और ये जल्दी डिलीवर कर जाते हैं, बिकॉज मदर के यूट्रस में डिस्टेंशन की एक कैपेबिलिटी है. ह्यूमन यूट्रसेस आर एडिक्वेट फॉर 1 ग्रोथ ओनली, तो 2 को फिर भी ले लेते हैं, और ज़्यादा हो तो वो चूहे जैसे सारे निकल आते हैं, एंड देन यू नो टू सर्वाइवल में बी अ प्रॉब्लम. क्योंकि we have examples from Bollywood, you know. Yeah. Bollywood आपने बोला ना रेस्क्यू में आता है, तो वो ही ट्रेंड सेटर भी है, आई थिंक. Do you think so? Farah Khan had 3 triplets. I'll tell you what has happened. Bollywood has become the biggest curse for women who needed true surrogacy. बॉलीवुड में इतना लोगों ने सरोगेसी को मिसयूज़ किया. अब तो ये लॉ बन गया है कि सरोगेट में तुम 1 से ज़्यादा एम्ब्रियो नहीं डालोगे. पहले सब 2 डाल रहे थे, ट्विंस एक बार में हो गए, ले गए. उस सरोगेट का क्या हाल हुआ? और अगर अबॉर्ट कर गए, उनका तो कहानी नहीं पता चलती है किसी को भी. जो अबॉर्ट कर गए ट्विंस, उनकी कहानी नहीं पता चलती है. और सारे 2-2 बच्चे डालते हैं, 2-2 एम्ब्रियोज डालते हैं. और अगर तुम इफ इट बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव, तुम 3 डाल दो, इकट्ठे हो जाएंगे. They don't have to worry about cost के बारे में. जनरली ऑल सरोगेसी से जो बच्चे हुए हैं बॉलीवुड, उसी में सुषमा स्वराज जी का ध्यान गया कि ये क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन. जो बेचारी गरीब औरतें हैं, पैसे की उसमें ट्विन ट्रिपलेट पैदा कर रही हैं, उसी की वजह से सरोगेसी पे इतना बड़ा एक अंकुश लगाया गया. नहीं तो ट्रूली जिन लड़कियों को सरोगेसी की ज़रूरत है, बिना यूट्रस के पैदा हुई, या यूट्रस चाइल्ड बर्थ में निकालना पड़ा, ना बच्चा बचा ना यूट्रस बचा, या और कोई बीमारी यूट्रस में है जिसकी वजह से दिस यूट्रस इज़ नॉट केपेबल ऑफ कैरिंग अ चाइल्ड, उन सब का चांस बहुत कम हो गया है अब विद commercial surrogacy. But we've seen those, no? Farah Khan, Karan Johar, everyone, Priyanka Chopra, Jonas. single parents कितने सारे हैं तुम्हारे. ये करण जौहर तो is a single parent. अब तो मेल्स के लिए सिंगल पेरेंट भी मना हो गया है, that if you are a man you cannot have this thing of surrogacy, because लोगों ने इसके, not the people who you are saying, but there are a lot of people who have done child trafficking by means of surrogacy only. बच्चे पैदा कराए surrogate से, ये कह के कि I'm a single parent, men, women, whoever, and all these children were exported to various countries. और इसको चेक करने का कोई तरीका नहीं है, तो बंद करना ही was the only answer. लॉ के पास कोई आंसर ही नहीं था. उन्होंने कहा बंद करो कमर्शियल सरोगेसी. फिर भी थोड़े लोग करा रहे हैं, बट अचानक तुमने सुना ना कितना कम हो गया बॉलीवुड में. एक एरा आया था 10-15 साल पहले, मतलब इट वाज ब्लॉसमिंग इन. तो वो ही ट्रेंड आज मतलब कपल्स कॉपी कर रहे हैं या उसकी को एप कर रहे हैं ना, IVF को लेकर कि नहीं, अगर उसकी वजह से IVF बदनाम हो गया. सबने सोचा सरोगेसी इज IVF का 100वां हिस्सा है. अगर हम 100 IVF करते हैं, उसमें भी एक सरोगेट नहीं होती है. पूरी साल में जब सरोगेसी अलाउड थी, हम लोग गंगाराम में करते थे, नॉट मोर देन 12 to 20 surrogacy cases in a year, whereas we do more than 1,000 cases of IVF in a year. So donor eggs फिर भी लोग यूज़ कर लेते हैं कि हमारी ओवरीज काम नहीं कर रही हैं, तो we might use a donor. But surrogacy, आप अपना एक न्यूबॉर्न बेबी को किसी और औरत को दे दोगे जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है कि मेरे बच्चे को 9 महीने देखो, हम उसको छुएंगे भी नहीं, तुम जो चाहे खिलाओ, जो चाहे कुछ करो.
people were giving it to surrogates, no? And खैर if you are very rich, तुम surrogate के लिए घर बनवा दो, उसको वहाँ रख दो, उसके लिए servants लगा दो, diet बना दो, but otherwise this was not happening for common men. तो surrogates कैसे select होता है? The hospital decides or no, surrogacy is supposed to be selected by now according to the law the couple has to find their own surrogate. अपने आप से ढूंढना है. अपने आप ढूंढो, कोई closely known हो, relative हो, फिर उसके सारे टेस्ट करते हैं, अगर वो लगता है appropriate है and according to the law age appropriate है, सब कुछ ठीक है, then they have to go to the authorities. हम certificate देते हैं कि why am I recommending surrogacy to this couple. जैसे इनका uterus नहीं है और she's had 5 miscarriages and is not being able to carry a pregnancy, so I advise her surrogacy. फिर एक medical board होता है जो अब सेंट्रल अथॉरिटी बनी है, वो अप्रूव करता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है. सरोगेट बोलती है आई एम नॉट टेकिंग एनी मनी, आई एम डूइंग इट आउट ऑफ माई फ्री विल. And the parents say, I'm not giving any money, and she's very closely known to me, and she wants to help us. Under the table, जो भी कुछ हुए वो अलग है. बिना पैसों के कोई क्यों करेगा? है ना, समझ में आ रहा है ना, ये तुमको भी समझ में आता है, मुझे भी, लेकिन वो लोगों को ये डिक्लेरेशन देनी होती है, प्लस इंश्योरेंस कराना पड़ता है सरोगेट का कि उसकी लाइफ को कुछ भी हो तो इट्स अ गुड इंश्योरेंस विच शुड बी देयर फॉर maybe 1 year after the birth also, कि अगर उसको कोई हेल्थ इशू होता है तो इंटेंडिंग पेरेंट्स जो हैं दे हैव टू टेक केयर. तो सरोगेट का भी ऐसा होता है कि वो भी बच्चे को क्लेम करना चाह रहे हैं एंड देयर इज अ करते नहीं है ये लोग. जो कि प्रॉब्लम पता है क्या सरोगेट के साइड से क्या होती थी पुराने ज़माने में, अभी की नहीं, आफ्टर द लॉ they used to abort the child. बाज़ार में तो मिलती है दवाई अबॉर्शन की. They used to get partly a good amount on the embryo transfer and on the first heartbeat. उसके बाद दवाई खाई, अबॉर्ट हो गया. किसी को क्या मालूम कैसे अबॉर्ट हुआ है. हॉस्पिटल पहुंच गए, ब्लीडिंग हो रही है, अबॉर्शन हो रहा, अबॉर्शन हो गया, अगली दुकान पे चले गए कि दोबारा एक नया. मतलब फुल बर्थ पे यू गेट अ लॉट ऑफ मनी, बट इवन ऑन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ₹1,00,000 तो मिल ही जाता था. इतना इसको भी एक बिजनेस की तरह सब तरफ से हम लोग ना, ह्यूमंस का ब्रेन बड़ा राइप है, हम बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स करते हैं, हम बहुत अच्छे एडवांसेस करते हैं, पर हर एडवांस के साथ में ना हमारा ब्रेन इतना काम करता है कि हम उसका एक साइड इफ़ेक्ट निकाल लेते हैं. अब ये नहीं देख रहे हो जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, पैसों को हम सोचते हैं कितना अच्छा चीज़ है, सेल फोन है, वी कैन डू बैंकिंग ऑन दिस, वी कैन डू एवरीथिंग, पर लोगों ने उसमें भी उपाय निकाल लिया है कि हम इनका मनी निकाल लेते हैं. बिल्कुल, और बेचारे हमारी उम्र के लोगों को टारगेट करते हैं बिकॉज दे थिंक कि वो उतना नहीं पूछते हैं, डर जाएंगे, इसीलिए अगर हम बोलेंगे साइबर अरेस्ट कर लेंगे और बोलेंगे कि आपके नाम ये फ्रॉड हुआ है, उन्हें समझ में नहीं होगा कि कहाँ से क्या फ्रॉड हुआ है, और CBI आ गई और पुलिस आ गई और क्या क्या हो गया. डार्क साइड भी उतना ही है, हर चीज़ का है बेटे. देयर इज़ नथिंग विच इज़ विदाउट अ डार्क साइड. लोग मुझसे अभी एक इंटरव्यू हो रहा था, सिजेरियन ज़्यादा हो रहे हैं, वो तो अनबिलीवेबली ज़्यादा इंसिडेंट्स. पर क्यों है? अगर हम एक लड़की को बोलते हैं गो थ्रू पेन्स, आई विल गिव यू अ पेनलेस डिलीवरी, उसमें भी जो उसको थोड़ा पेन होता है, आधे घंटे बाद हमारे पास रिक्वेस्ट आती है जी हम उसको देख नहीं पा रहे हैं तड़पते हुए, आप प्लीज़ सिजेरियन कर दीजिए. सो यू नो दोनों साइड की प्रॉब्लम्स हैं. हमारे लिए इजी है सिजेरियन करके निकल जाना, हमें रात भर दिन भर बैठना नहीं पड़ रहा है, मॉनिटर नहीं करना पड़ रहा है. एंड द मनी नहीं है सिजेरियन में ज़्यादा. यू आर रॉन्ग मैम, बट हॉस्पिटल्स मोस्ट ऑफ द बिग हॉस्पिटल्स हैव मेड नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन का बिल्कुल इक्वल मनी फॉर द डॉक्टर. It has happened recently, right? No, it is now in our hospital since last 8 years. And it has also happened in Max and it happened in Mulchand. Most of the big hospitals, जो फीस सिजेरियन करने की डॉक्टर की है, बिल्कुल उतनी फीस नॉर्मल डिलीवरी. इनफैक्ट हमने अभी रिक्वेस्ट डाली कि नॉर्मल डिलीवरी की बढ़ाओ. So that people want, क्योंकि उसके लिए तुम रात भर दिन भर लगे हुए हो, पेशेंट का कभी हार्ट बीट सुन रहे हो, कभी प्रोग्रेस देख रहे हो, आवर्स निकल जाते हैं. मतलब मैं रात को अगर 1 बजे 2 बजे जाती हूँ ये बोल के कि बिल्कुल अभी डिलीवर होने वाला है, एंड समटाइम्स 4 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं. तो नॉर्मल डिलीवरी में हमारी धुक बहुत होती है. वी आर वेरी वरीड कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, माँ को, और प्लस
टाइम बहुत लगता है। सिजेरियन तो पेशेंट को टेबल पे लिटाया, करा, निकल आया आधे घंटे में। मनी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। इसी भ्रम को ख़त्म करने के लिए ऑल द गुड बिग हॉस्पिटल्स हैव मेड बिल्कुल इक्वल फी ऑफ द डॉक्टर। और हम लोगों ने अभी रिक्वेस्ट दिया है कि नॉर्मल की बढ़ाइए आप। बहुत मेहनत लगती है उसमें। तो मैम IVF का क्या कॉस्ट आता है? मिडिल क्लास लोग IVF अफोर्ड कर सकते हैं? अच्छा ये बताओ, किसके पास गाड़ी नहीं है आज, या किसके पास मोबाइल नहीं है? उसमें EMI होता है ना। नहीं, तो IVF में भी अब लोग जो हैं बहुत कमर्शियल हैं, वो लोगों ने EMI कर दी है। अच्छा, IVF में भी आप देखो ना, रिक्शाओं के पीछे एडवर्टिजमेंट लगता है कि हमारे यहाँ IVF EMI पे होता है। सो इट इज़ स्ट्रेंज टू से दैट, बट IVF का हमारे यहाँ जो कॉस्ट आता है 1,20,000 है। This is for one cycle. One cycle. And medicines का cost another 50,000 से 1 लाख तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हम कितना डोज दे रहे हैं और कितना हाई क्वालिटी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। पर एक चीज़ समझो कि अच्छे सेंटर्स जो हैं वो एक एम्ब्रियो डाल रहे हैं, हमने 4 बना लिए, तो हम एक बार में एक डालेंगे ना, दूसरी बार दूसरा डालेंगे, तो हम बार बार ये 2 लाख का खर्चा नहीं इनकर होगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो भी हमारा 30-40,000 है वो हर बार इनकर होगा पेशेंट को। यू अंडरस्टैंड, मे बी अ फ्यू टेस्ट, अल्ट्रासाउंड एंड दैट। सो मेडिसिन इज़ चेंजिंग इट्स फेस वेरी फास्ट। और हर IVF साइकिल, अभी भी देर आर सेंटर्स, आज ही मैंने एक देखा 4 IVF हुए, 4 बार एग निकाले, हर बार 2-2, 3-3 एम्ब्रियो जो बने वो डाल दिए और नई प्रेग्नेंट हुई। देन दे केम टू मी नाउ। When I explained that we will put 1, तो बोले आप 1 क्यों डालेंगे, जिससे कि बार बार डाल सकें? हमने कहा नहीं, जिससे आपका मल्टीपल प्रेगनेंसी ना हो। एंड उसी समय एक और पेशेंट बैठी हुई थी जिसका एक बच्चा हो चुका है 23 में, उसके 3 एम्ब्रियोज और रखे थे। मैंने कहा था, इसका देखो, अभी हम यही एम्ब्रियो डाल रहे हैं, हम इसका दोबारा IVF नहीं कर रहे हैं 3 साल बाद। यू अंडरस्टैंड, वो एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्व्ड है। अच्छा, वो हमारे पास जो बनते हैं, हमने 5 क्रायो प्रिजर्व किए और पर्सन फर्स्ट या सेकंड में प्रेग्नेंट हो गया, तो वो बाकी 3 रखे रहते हैं। वो कब तक चल सकता है? 10 ईयर्स तक अलाउ किया है हम लोगों को। हाँ, तो वो सही रहता है? हाँ, बिल्कुल सही रहते हैं। वो उसी एज का एम्ब्रियो है जो उस समय मदर का एज था। तो मदर्स का अगर 35 पे और 5 साल बाद आती है, अब 40 साल, तो उसके जो एम्ब्रियो बनेंगे उसमें उसका एज का इफ़ेक्ट आ जाएगा। पर जो पुराने बने हुए हैं उसमें 40 इयर्स एज का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। दिस इज़ अमेजिंग। कि व्हेन यू थिंक कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ 25% IVF पेशेंट्स के बेबीज़ उनके फर्स्ट IVF से बने हुए एम्ब्रियो से होते हैं, चाहे उसमें एक फेल हो, एक अबॉर्ट कर जाए, एक फुल टर्म पे जाए, फिर भी इतने बन जाते हैं जिनके रिज़र्व ठीक हैं और 5 एम्ब्रियोज़ बन गए कि एक बच्चा हो गया, और फिर भी 2 एम्ब्रियोज़ रखे हैं, दोबारा आए, डाला, दूसरा बच्चा हो गया। ये एग फ्रीजिंग इसको बोलते हैं। ये एग फ्रीजिंग, एम्ब्रियो फ्रीजिंग है ये। सो एग फ्रीजिंग इज डिफरेंट। एग फ्रीजिंग उनके लिए करते हैं जिनके पार्टनर्स नहीं हैं, एम्ब्रियो बना ही नहीं सकते हैं। तो एग है, लड़की के एग्स फ्रीज होते हैं, वो आजकल बहुत लड़कियां कराती हैं, इसको हम लोग सोशल एग फ्रीजिंग बोलते हैं। उसका ट्रेंड कहाँ से आया है? उसका ट्रेंड इंटरनेट, विदेश, वेस्टर्न वर्ल्ड। तो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में होता है। देखो IVF भी पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू हुआ था आइडियली, एंड एग फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया। हम लोग तो एग फ्रीजिंग करते हैं। हम लोग करते थे कैंसर पेशेंट्स के लिए, जिनका कैंसर की ट्रीटमेंट शुरू होना है, एग निकाल के फ्रीज। अब सोशल फ्रीजिंग का ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि 1 महीने में अगर मैं 100 IVF करती हूँ तो उसमें से 10 एग फ्रीजिंग के लिए आती हैं लड़कियाँ। 10 या 8 या आई वुड से 6 से 10 के बीच में, 6% ऑलमोस्ट। That's high. तो and these are young girls. नॉर्मली दे शुड बी यंगर देन 35, बट बहुत सी लड़कियां 40 साल में जान पाती हैं कि एग फ्रीजिंग होती है। टुडे वन लेडी केम एट 40 years of age and her egg reserve was almost like very very little. Her menstruation had become irregular. So I told her, you are not the candidate for egg freezing. आप भूल जाओ, आप 10 साइकिल्स थोड़ी कराओगे एग फ्रीजिंग के लिए। You need at least 15 to 20 eggs at 40 years of age to be able to give you one live child. वो पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी साइकिल्स लगेंगी। आप 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके कितना खर्च करोगे? डोंट गो फॉर इट, जस्ट लीव इट, लेट नेचर टेक होल्ड। व्हेन यू हैव अ पार्टनर, कम एंड वील थिंक ऑफ यूजिंग डोनर एग्स फॉर यू। Okay, then it can. And you will still be pregnant. उसके फादर ने कहा, I want her to be pregnant. हमने कहा, she will be pregnant.
पार्टनर के स्पर्म, शी विल कैरी हस्बैंड्स और पार्टनर्स बेबी, खाली ये कि उसके एग्स नहीं बन रहे हैं, तो डोंट टैक्स हर मेंटली सो मच दैट शी कांट हैव अ चाइल्ड. She will have a child, she will carry the child, it will be of the person whom she loves. But if she doesn't have the eggs, then or the quality of eggs? No, तो हम उसके नहीं, हम डोनर से ले रहे हैं, यंग डोनर्स अलाउड हैं. Okay. 30 Donor year eggs for old the girl. गर्ल. डोनर एग लिया, हस्बैंड के स्पर्म से वही एम्ब्रियो बनाया, वो उसके यूट्रस में रख दिया, जब उसको अप्रोप्रिएटली हार्मोन वगैरह दे के रेडी करके रख दिया, और आराम से प्रेग्नेंट होती है. इन एग्स का क्या शेल्फ लाइफ है? इनका भी 10 years. 10 years है. Okay. अभी तक 10 years है, और भी एक्सटेंड हो सकता है. मतलब हमारा ओल्डेस्ट बच्चा जो हुआ है वो आई थिंक 8 years की एम्ब्रियो फ्रीजिंग से हो चुका है, और वो भी डॉक्टर कपिल घूमता घामता आया जी, हमारे ना 10 साल का या कितना 8 साल का बच्चा है, हमारा एक बार IVF हुआ था आपके यहाँ, हमने कहा आपके एम्ब्रियोज हैं थे तो, लेकिन हम लोगों ने रिन्यू नहीं कराए. दे हैव टू पे a 10,000 fee every year for renewal which they never got done. फिर भी हम लोगों ने देखा, निकल आए उनके एम्ब्रियोज, हमने कहा जाओ रिन्यूअल फी दे के आओ and have them transferred. And they had a baby? They had a baby. Oh man. So IVF centers are otherwise very logical, ethical. We are compassionate also. We are very we feel for the patients कि इनके एम्ब्रियो रखे हैं, इन्होंने पेमेंट नहीं की, पर यू नेवर नो कब मिसहैप हो जाए, क्या हो जाए, रखे रहो. हमारा क्या जाता है, क्रायो कैन में हज़ारों एम्ब्रियोज रखें, एक और पड़ा रहे. अच्छा, तो उनको डिस्कार्ड हम लोग डिस्कार्ड नहीं करते हैं, लेकिन अब हमारे पास डायरेक्टिव आ गया है ART लॉ का कि अगर आप उनको लेटर भेजिए और अगर वो लोग रिन्यूअल फ़ी नहीं पे करते हैं, मे बी 3 months or 6 months, then you can inform them and discard their embryos. That's also another. बिकॉज क्रायो कैन्स भरते चले जा रहे हैं. हमारे पास इतने बड़े बड़े क्रायो कैन्स होंगे, कम से कम 18, और एक एक क्रायो कैन में करीब आई थिंक कितने पेशेंट्स का होगा, 200-300 पेशेंट्स के एम्ब्रियोज हैं. तो यू नो दे जस्ट गो ऑन काउंटिंग. मतलब दीज आर अनबॉर्न चिल्ड्रन विच आर फ्रोजन विद अस, एंड पेरेंट्स आराम से बैठे हैं क्योंकि इनके 2 बच्चे हो गए या 1 हो गया, तो वो परवाह भी नहीं करते कि हमें इन्फॉर्म कर दें कि आप हमारे एम्ब्रियोज को डिस्कार्ड कर दीजिए. हम उनको गिल्ट फील कराते हैं जब वो आते हैं ना, तो हम बोलते हैं आपके बच्चे हमारे पास पड़े हुए हैं फ्रीज़र में, आपको चिंता ही नहीं थी इनकी. If we look at it like that, that's true. That is true. Yeah. One can get very emotional. I mean, when you think all these are babies. Some people are very emotional about it, and they come and talk to us that हम इनको discard कराना चाह रहे हैं. We don't want to give them. There are conditions that you can discard them. You can give them for research purpose. पहले donate भी था, अब donation को हटा दिया है law ने, कहा donate नहीं करो, because उसके ऊपर भी बहुत लोग पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे थे. किसी के एम्ब्रियोज डोनेट कर दिए, पैसे खुद रख लिए, पता भी नहीं पेरेंट्स को. सो वो सब ख़त्म हो गया है. सो विच इज़ अ गुड थिंग. अगेन गुड थिंग. मैम, IVF को लेकर एक ये दिस इज़ एक बिलीव कि IVF होगा तो हमें जो बच्चा चाहिए, जैसा चाहिए वो मिल जाएगा. बॉयज़ तो, और मोस्टली इफ़ यू सी IVF babies, if there are twins, there'll be 2 boys or a boy. So, and this thing कि we will have a curly haired kid or a देखो, सबसे पहले तो मैं बॉय वाली चीज़ को बता दूँ कि this is absolutely nonsensical, because the law doesn't allow us to do sex determination. जिनको चाहिए बॉयज़ वो बाहर जाते हैं इंडिया से, बिकॉज इंडिया डजेंट अलाउ सेक्सिंग ऑफ एम्ब्रियोज. सो इवन अगर हम PGTA करा रहे हैं, जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है कि कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है बच्चे में, तो भी उसमें सेक्स उनको बताने की इजाज़त नहीं है, नीदर जेनेटिक लैब को, एंड इट इज़ ऑलवेज अ डिफरेंट लैब, और IVF लैब को. We never know it. पर पेशेंट्स आपके पास आते हैं कि हमें लड़का चाहिए, आते हैं तो हम उनको दुबई भेज देते हैं. लड़की चाहिए करके हार्डली कोई आता है, लड़के के लिए ही सब आते हैं. और जो आते हैं हम उनको बोलते हैं आप सिंगापुर चले जाओ, दुबई चले जाओ, USA चले जाओ, वहाँ सेक्सिंग अलाउड है. And they do that. And they do that. तो ये लोग कौन है? ये बहुत अमीर लोग हैं जो आराम से 15 लाख एक IVF पे खर्च कर सकते हैं, आना जाना खर्च कर सकते हैं. They are educated. Educated, सबसे ज़्यादा educated लोग आते हैं इसके लिए, businessmen, educated. Boys के लिए
तो हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। और हमारे यहाँ तो बाकायदा PNDT एक्ट के अंतर्गत वो लोग चेक करते हैं हर महीने की स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए कि कितने लड़के कितने लड़कियाँ हो रही हैं। एंड सेक्स रेशियो बदल रहा है, हम लोगों को कितनी चिंता है उसके बारे में कि किस तरह से फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, कैसे बच्चियों को मारा जा रहा है, अनबॉर्न बच्चियाँ, बॉर्न बच्चियाँ, हर एक को। राजस्थान, पंजाब, ऑल दीज आर लाइक, हरियाणा, पंजाब में भी है बहुत, हरियाणा इज फॉर श्योर, ऑल दीज प्लेसेस आर किलिंग गर्ल्स। तो अभी कम नहीं हुआ है इन सब जगह? थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, बहुत चेकिंग हो रही है, लेकिन जो बहुत कर रहे हैं ना उनको कोई नहीं पकड़ता है। सब बड़े बड़े सेंटर्स पे हाथ डालना चाहते हैं जहाँ पे कि नहीं हो रहा है। हो कहाँ रहा है? वैन्स के अंदर अल्ट्रासाउंड लेके बता दिया ये तो लड़की है, उन्होंने वहाँ पे दवाई खिला के ब्लीडिंग शुरू हो गई, अपने आप अबॉर्ट कर जाएगी। आजकल तो बहुत ईजी हो गया अबॉर्शन तो कराना। ये स्मॉल टाउन्स में बहुत प्रेवलेंट है? पता नहीं कहाँ कहाँ है, पता लगाना पड़ेगा। ये तो आपको पूछना पड़ेगा। और मतलब रूरल अभी बिकॉज जब आपने बोला ना दे आर एजुकेटेड पीपल जो आपके पास आ रहे हैं बॉयज़ के लिए, मेल के लिए आते हैं कि IVF कराना है, वो एजुकेटेड रिच पीपल आते हैं। पर और पुअर भी आते हैं और सिंपल पीपल भी आते हैं कि लड़का चाहिए। पर पहली चीज़ हम प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं, अगर उनके ऑलरेडी एक लड़की है, 2 लड़कियां, तो पहली चीज़ लिखा होता है नो सेक्स सिलेक्शन इज़ पॉसिबल इन एनी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर कंसेप्शन, whether it is IUI, IVF, medicines, we cannot do any sex selection. जो आप उनको ये बताते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? बहुत कुछ, कभी दे प्लीड कि भैया कर दो, कभी किसी के कनेक्शंस निकाल के बोलते हैं कि जी हम उनके नोन टू हैं। हमने कहा उनसे जाके पूछो जो करता है। सो देर आर फ्यू पीपल हु मस्ट बी डूइंग इट अंडर द टेबल। आई हैव नो आइडिया ऑफ देम, बट देर आर पीपल हु डू इट, बट मोस्टली दे डोंट डू। मोस्टली IVF सेंटर्स नहीं करते हैं बिकॉज हम अब हमारी उम्र पे वुड आई वॉन्ट टू गो इन टू द लीगल प्रॉब्लम्स, लिटिगेशन, नेवर. So why would anyone do any reputed center में if you are working you will never do something wrong because एक रेपुटेशन स्टेक पे होती है, दूसरी आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई चली जाती है इसमें, अगर एक ख़राब वर्ड ऐसा आ जाए. ट्रू. सो नो, पीपल डोंट डू इट. तो एक तो इसकी बात हो गई कि लड़कों की जोड़ियाँ नहीं, लड़कियों की जोड़ियाँ भी बहुत होती हैं. यू मस्ट सी देम एंड इक्वल नंबर में लड़के और लड़कियाँ होते हैं. यू मस्ट कम टू आवर IVF सेंटर, लुक एट द बेबीज बीइंग बॉर्न. ये चाइनीज़ कैलेंडर के हिसाब से एक दिन सब लड़कियाँ हो रही होती हैं, एक दिन सब लड़के हो रहे होते हैं. इवन फॉर नॉर्मल conceived women, it works very well. और दूसरा डिज़ाइनर बेबीज़, उसका कोई वजूद नहीं है. देखो डिज़ाइनर बेबीज़ कैसे होंगे? अगर हम एग किसी यूरोपियन का ले लें या हम स्पर्म किसी यूरोपियन का विद ब्लू आइज़ ले लें, तो भी मदर फादर का मिल के जो आइज़ बनेंगी वही बनेंगी ना, राइट? इट्स लाइक अगर आप दोनों यूरोपियन लेंगे तब तो उसके जैसा बच्चा बन जाएगा. Okay. पर हम यूरोपियन, मतलब कौन चाहेगा कि हमारा बच्चा पराये बच्चे की तरह दिखे? बट आपके पास इस तरह के जब एक डोनर के लिए भी आते हैं तो हम लोग उसमें लिख के भेज देते हैं बिलोंग्स टू नॉर्थ इंडिया, बिलोंग्स टू मणिपुर, बिलोंग्स टू बच्चा अपने जैसा दिखना चाहिए. हाउ कैन यू वांट अ बच्चा टू बी लुकिंग लाइक ब्रैडफर्ड और समवन एल्स, पर लोग ऐसे चाहते हैं, मतलब इस तरह की क्वेरीज. आजकल ऐसी क्वेरीज बहुत कम हो गई हैं, लोग पढ़ने लगे हैं. एंड ऐसे नहीं होता है कि वो ब्लू आईज और कर्ली हेयर वाले बच्चे हो जाए. हम बोलते हैं फिर बाप ढूंढ लो ऐसे वाला और फिर हम कर देंगे. ब्रिंग अ मैन एंड से ही इज़ योर पार्टनर. अब आजकल तो हम लोग पार्टनर्स का भी नहीं कर सकते हैं. इट हैज़ टू बी अ मैरिड कपल. The law has also given this. Okay. Living in couples के साथ you cannot do IVF. In India. In India. Okay. हमारे laws 21 दिसंबर में जो बने हैं ना, उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने बहुत clearly लिखी हैं. Single mother can have a child, single father cannot. Okay. Because वही child trafficking का डर होता है. So in case of women ऐसे नहीं देखे गए instances of child trafficking? पता नहीं, I don't know, these people when they make the rules and they must be seeing things. At least एक औरत बच्ची का misuse नहीं करेगी.
बहुत कम चांस है कि एक औरत आती है, फिर उसमें कुछ वो भी है, सिंगल मदर मे बी विडोड हो सकती है, और दूसरी आई डोंट रिमेंबर द रूल्स एग्जैक्टली, बट उसमें है सिंगल मदर कैन गो अहेड फॉर IVF, use of IVF for a child. Single father cannot. Married couples have to go for it. Not living in couples. Same sex couples का तो मना ही कर दिया उन्होंने. Though they are the ones who want Want it. children. हाँ. So ma'am, how many cycles? कितनी cycles चाहिए होती है if you know वो एक for the egg to work for that One thing to cycle work. may be good enough for almost 50% people. 50%. जस्ट एक बार हमने एग्स निकाले और उससे जो एम्ब्रियोज बने, उससे 50% लोग पहली बार में प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और बाकी एम्ब्रियोज रखे हैं, अगर और नहीं बने तो नहीं बने. Another 50% may need a second cycle and maybe a third cycle also. It depends on your age, your fertility, your number of eggs which you have, the interaction between the egg and sperm. कभी कभी 2 एग निकले और 2 बहुत सुंदर एम्ब्रियो बन गए, कभी 20 एग्स निकले और उसके हस्बैंड के स्पर्म से इंटरैक्ट कराए और एक ही एम्ब्रियो बना, या 0 बने. तो इज इट अ पेनफुल प्रोसेस? नो. आजकल तुमको लगता है लेबर पेन क्यों नहीं लोग लेते हैं? पेनफुल प्रोसेस है, सिजेरियन कर दो. IVF में भी तो इंजेक्शंस होते हैं, दैट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, जो एग को एक्सट्रैक्ट करने का देखो प्रोसेस IVF है. में जो इंजेक्शंस हैं, दे आर ऑल सबकुटेनियस इंजेक्शंस जो पेन की सिरिंज से लगाए जाते हैं. डायबिटीज़ का सुना है तुमने कि सब लोग अपने आप इंजेक्शन खाना खाते हुए अपने आप ही कर कपड़ों लेते के ऊपर से लगा लेते हैं. ये भी नहीं करते हैं कि उसको ऊपर उठाया, लिया और लगा लिया. दिन में 3 बार लगाते हैं. इसमें तो 10 दिन एक इंजेक्शन लगाना होता है, सबकुटेनियस खुद ही लगाना होता है. तो व्हाई इज़ इट गोइंग टू बी पेनफुल? अगर डायबिटीज़ के पेन से लगाए इंजेक्शन पेनफुल नहीं है, तो फर्टिलिटी के पेन से लगाए हुए So it's क्यों not. होंगे? इट्स द सेम स्मॉल नीडल, थिन नीडल विच गोज इनटू जस्ट द इनर स्किन. आप ब्लड टेस्ट करते हो यहाँ से, ब्लड शुगर के लिए कितना पेनफुल है? थोड़ा सा यू फ्लिंच समटाइम्स. स्टिंग जैसा. हाँ, समटाइम्स वो भी नहीं होती है कुछ लोगों को जिनके हार्ड हो जाते हैं. इट इज़ दैट मच. प्लस जब एग निकालते हैं तो हम लोग एनेस्थीसिया शॉट देते हैं हमेशा. 15 मिनट के लिए इंजेक्शन लगाया, एनेस्थेटिस्ट रहता है, पूरा वाइटल्स मॉनिटर होते हैं पूरा, एंड उसमें उसको सुलाया 10 मिनट के लिए. 10 मिनट में एग्स निकल आते हैं. वो नीडल हम वजाइना के थ्रू डालते हैं, वजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू, एंड वी टारगेट द ओवरी विच इज सिटिंग जस्ट ओवर द वजाइना ऑन बोथ साइड्स. तो उसमें गए खट 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 सब एग्स निकाले, दूसरे में गए खट खट निकाले, और नमस्ते. कोई कट नहीं है, कोई स्टिच नहीं है, कुछ नहीं है, एक्सेप्ट दिस कि हाँ नीडल हमें डालनी है, तो नीडल कहीं पे भी डालेंगे तो इट्स गुड टू गिव एनेस्थीसिया. राइट, क्योंकि वो और पेशेंट अगर मूव नहीं करेगा तो हम वही काम 2 मिनट में कर लेंगे. वो अगर ऐसे ऐसे करती रहेगी तो ओवरी हिलेगी, तो हमें मुश्किल होगी करने में. तो सब एनेस्थीसिया देते हैं. इट्स हार्डली 10 मिनट्स. ओके. सो एंड देन इफ यू हैव टू रिपीट द साइकिल, फिर दोबारा हाँ, रिपीट ना, और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं. वो तो जनरली जैसे IUI होता है, एक पतला सा कैथेटर लिथोटमी पोजीशन में लिटाया, सर्विक्स को देखा स्पेकुलम लगा के, एक छोटा सा कैथेटर अंदर डाल के उसी से एम्ब्रियोज डाल दिए अंदर. सो वो नॉन पेनलेस है. लेकिन इफ़ एनीबडी रिक्वेस्ट, जैसे वेजिनिस्मस के पेशेंट्स हैं हु हैव नेवर हैड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और हु हैव अ लॉट ऑफ पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उनको हम लोग तब भी एनेस्थीसिया दे देते हैं ट्रांसफ़र के टाइम पे भी कि भाई शांति से लेटो, व्हाई शुड यू सफ़र एनी पेन. एंड यही पेन का कॉन्सेप्ट है दैट लॉट ऑफ गर्ल्स ऑप्ट फॉर अ इलेक्टिव सिजेरियन ऑल्सो इन टुडेज वर्ल्ड. दे कम एंड टेल मी, हमने डॉक्टर बदल लिया क्योंकि उनसे बोला हमें सिजेरियन चाहिए, उन्होंने मना कर दिया. उन्होंने कहा जैसा होगा डिलीवरी देखेंगे. तो वी हैव कम टू आस्क यू, विल यू डू अ इलेक्टिव सिजेरियन? आई से या कम. वी कांट टॉर्चर you if you're not mentally ready. Because we were talking about, so what is the right age? Like, this concept of पहले होता था ना अर्ली मैरिजेस, women would get married by जैसे अर्ली 20s में शादी हो जाती थी. अभी एवरीबडी, सबका एक करियर है, एंड एवरीबडी हैज़ एक गोल कि आफ्टर दिस आई विल गेट मैरिड, या इतनी उम्र के बाद आई विल. तो ये जो चल रहा है उसमें व्हाट इज़ द राइट एज? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के ज़माने में जो तुमने अभी किया है. राइट एज आइडियली हम लोग बोलते हैं 20s में सबसे अच्छा है. बीमारियां भी कम होती हैं, ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है, डायबिटीज़ भी होना अगर फैमिली में भी है और लेट होगा. सारी मेडिकल बीमारियां, सारी लोकल बीमारियां सब कम होती हैं, और जनरली एग रिजर्व वगैरह सब ठीक होता है. तो गर्ल गेट्स प्रेग्नेंट मोस्ट ईजिली इन हर 20s और वेरी अर्ली 30s. पर अब
प्रोफेशनल प्रायोरिटीज़ हैं, करियर बनाना है, सब कुछ करना है, तो सब लोग अपना एज चूज़ करने लगे, हमें 35 से पहले बच्चा नहीं चाहिए। ऐसे लोग आजकल इतनी जानकारी ले लेते हैं दैट इवन इफ दे आर मैरिड, they come and they say that, see, we want our embryos frozen for the second child. Okay. Right? If they come at 33 and I say, you are so young, your reserve is okay, you can just let it go. But they said, no, we don't want a child now. We will try after 35. ये embryos हम freeze करा रहे हैं second child के लिए, which I would want when I am around 40. इतनी प्लानिंग है। ये तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग की है जिनके पार्टनर्स और जिनके नहीं है वो सब आके एग फ्रीज करा लेते हैं, एंड देन व्हेन दे हैव अ पार्टनर देन वी थॉ दोज एग्स, फर्टिलाइज विद द पार्टनर स्पर्म एंड मेक एम्ब्रियोज एंड पुट देम इनटू द लेडीज। सो मैम, स्पर्म हेल्थ और एग हेल्थ दोनों को लाइफस्टाइल प्लस अल्कोहल, स्मोकिंग, ऑल्सो सम काइंड ऑफ ड्रग्स, ऑल्सो अ लॉट ऑफ masturbation that has come in, बहुत सारे couples में the men are masturbating, so a lot more than they are having intercourse. The incidence of intercourse is much lesser. So does it affect the sperm count and the overall sexual health? Okay. See, there are two things. First thing is, you said lifestyle. Lifestyle is the most important factor. A little exercise, a little reduction of junk food, and a balanced diet. This is what lifestyle comprises of. Every woman, whether you undergoing fertility treatment or you are pregnant, should have some form of exercise in life. Maybe daily a walk of 40 minutes, or going to the gym, or doing Pilates. We don't say no to any type of exercise. खाली impact exercises pregnancy में कम करनी चाहिए जिसमें thumping होती है. That's it. दूसरी चीज़ smoking, alcohol, vaping. Smoking is definitely harmful for the sperm health. And with that, vaping has come in very commonly today in the society. And that is even more toxic than smoking. And the partner who lives with a smoking partner also is exposed to a lot of smoke. So, smoking is definitely detrimental to sperm health. उसमें वो DNA fragment कर देता है. Sperms की fertilizing ability कम हो जाती है. Another thing जो sperm के DNA को damage करता है, husband's diabetes. If he's got uncontrolled diabetes, that will also damage sperms. On the woman's side, smoking will generally affect the growth of the baby inside her uterus, not so much her fertility of eggs. Okay. Alcohol will definitely affect the growth of the baby. Mother की side में alcohol मेल साइड में उतना इफेक्ट नहीं करता है ऑन स्पर्म DNA fragmentation जितना स्मोकिंग करता है. थर्ड थिंग इज़, सो स्मोकिंग का बता दिया, मदर के लिए इज़ बैड, अल्कोहल इज़ बैड, कैफीन इज़ बैड फॉर द मदर ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन पीरियड. बट इनफर्टिलिटी की तरफ देखा जाए तो अल्कोहल जो करेगा वो सेक्शुअल एक्ट या सेक्शुअल कॉन्टैक्ट को अफेक्ट कर सकता है. Now, regarding your third question of masturbation, if it is because of a psychological disorder, it needs to be treated. But if it is natural masturbation, which can happen once in a day or maybe once in 2 days, is not detrimental to sperm health. It's not, okay. So, ma'am, one thing, because men, especially in our country, यहाँ पे आदमी वो सोचते हैं कि नहीं, हम अभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, वी कैन स्मोक एंड, और कि बच्चा तो द फीमेल उसको बनाना है. तो ये जो, बिकॉज द स्पर्म डिसाइड्स, राइट, द हाउ गुड अ बेबी, और इज इट अ गर्ल और अ बॉय. So sperm decides the girl and the boy, but how good or bad, sperm doesn't decide. That egg and sperm together decide. But even so one needs to have a good sperm count to have normal, a normal sperm count. तो उनको लगता है कि नहीं, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. उनको हम डराते हैं उन्हें, और हम उनको इतना डराते हैं कि वो स्मोकिंग छोड़ देते हैं. बहुत से लोग स्मोकिंग कम करके आते हैं, छोड़ के भी आते हैं, बट स्टिल ऐसे केसेस आप देखते हैं. खूब आते हैं. और सबसे वियर्डेस्ट क्वेश्चन आपको क्या लगता है आपके पेशेंट में से? सबसे वियर्डेस्ट जो कोई एक क्वेश्चन, एक क्वेरी दैट दे कम टू यू विद. See, what questions you were asking
These are the questions which come from patients also. कितने IVF cycles, कितना होगा, कैसे होगा. But once they come and they understand the whole process so well, we are like sort of very happy because we don't want to decide on their treatment alone. We want partnership, and we want to look into their eyes and feel that we are empathetic with them. If we just talk to them, it doesn't happen. Because then only our mind, my brain connects with what you're saying. But if I look at you and you feel that what I'm saying is absolutely truthful and it doesn't have any commercial aspect to it, and you will feel the empathy. सब So लैब्स ऐसा नहीं करती हैं मैम. They are सब more- नहीं करते हैं, but बहुत yeah, ही this is- मैकेनिक होते हैं, मैकेनिकल But होते हैं then वो. this is, what takes you to the heights are only these qualities, that you are very ethical, you are very truthful, and people just come for an opinion. हमें सिर्फ ये पूछना है कि हमें सर्जरी करानी चाहिए कि नहीं, because हमें लोगों ने बोला है कि आप हमें ठीक ओपिनियन दे देंगी. And when they go back with this, that 4 डॉक्टर्स ने बोला सर्जरी कराओ और आपने बोला नहीं, they trust. That trust building is very important in partnership. Yeah, that So- you actually help the patient. Yeah, help the patient to understand, and if they trust you, they will listen to you. If you are not able to show your empathy, your concern, your involvement in their case, they will not trust you. Your So- fleeting eyes will not let them trust you. So one thing that you want to tell young couples, जो they are looking for IVF, and how they can even not need IVF and maybe have good natural conception. The only message which I would like to give to all couples who want to make a family is, one, understand your body. See, I always feel by 30, at least one medical checkup for the boy and girl is very important if you're thinking of postponing your pregnancy. If you are married, then also. If you're not married, then also. Because most of the diseases, whether they are in the pelvis or otherwise, develop with age. So understand your fertility is best under 35. After that, it starts declining, especially for girls. So be cautious, be conscious, be aware of the fertility clock, and get yourself examined around 29-30 with a doctor who would give you a correct advice that everything is normal, there is nothing to be afraid of. If there is no pelvic disease at that age, then it's very less likely that in the next 3-4 years you will have a big problem which will lead to infertility. So they have time till 35 to. 35 is till 35, still the age is ripe. Though we say that, till 30, 32 is the best age. But till 35, things are all right. After that, they start declining. And after 40, they decline very rapidly. So if you get married late, don't delay your fertility. So that is very important. Yeah. So if you're getting married at 38, 39, then don't think that you want to have a child after 3 years or 4 years. Try to have it ASAP. Ma'am, thank you so much for clarifying so many things and telling us, the secrets behind all those trends. So I think बहुत सारे लोगों को इसमें आंसर मिला होगा. What is the right thing to trust on? सो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस पॉडकास्ट से आप ये गेन करेंगे वो कहाँ पे ट्रस्ट करना है और क्या सही चीज़ है उसको चुनना है. सो मैम, फॉर आवर व्यूअर्स, प्लीज़ इफ़ यू कुड से to watch this podcast till the end, and please like, watch and subscribe to TDM Manthan. Okay, you already said what you want me to say. Please watch the podcast till the end, and you can like it or subscribe it so that you get to know more about medical news from this channel. Thank you. Thank you so much, ma'am. Guys, please watch, like and subscribe to TDM Manthan so that we can bring you more podcasts like this. Thank you so very much for watching us.